دجلہ کے کنارے آباد ایک عظیم الشان شہر کی داستان سنیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال قبل موجود تھا۔ اس شہر کا نام نینوا تھا اور یہ آشوری سلطنت کے دل کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں لاکھوں لوگ آباد تھے جو اپنی دولت پر فخر کرتے تھے اور تجارت میں اپنی مہارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ شہر اپنی طاقت کے بل پر دوسروں پر روب ڈالتا تھا اور تجارتی راستے روز بروز اسے مزید امیر بناتے جا رہے تھے۔ لیکن اس شہر کی اصل غربت سونے چاندی میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں اور روحوں میں چھپی ہوئی تھی۔ نینوا کے باشندے بت پرستی میں مبتلا تھے اور اپنے شہر سے باہر کی قوموں پر بھی بے انتہا ظلم ڈھاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے ہی کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ بھی سختی سے پیش آتے تھے۔ ایسے ہی ایک شہر کی جانب اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جن کا نام یونس بن متی تھا۔ ان کے نام میں ہی ایک گہرا معنی پوشیدہ تھا، یعنی یونس کا مطلب ہے وہ انسان جو مصیبت کے وقت بھی سکون سے رہ سکے۔ گویا ان کی تقدیر ان کے نام میں ہی لکھی ہوئی تھی۔ متی بنیامین بن یعقوب کی بیٹی تھی اور اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کی بھانجی تھی۔ اسی نسبت سے حضرت یونس علیہ السلام کئی انبیاء کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی تو انہیں دل پتھروں کی طرح سخت ملے۔ روز بروز گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں وہ ایک ہی پیغام دہراتے رہے کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ چاند، سورج اور ستاروں کو سجدہ نہ کرو اور اسے پہچانو جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ مگر نینوا کے لوگ دولت کے نشے اور غرور میں ڈوبے ہوئے حق کی بات سننے سے انکار کرتے رہے۔ 1 سال گزرا، پھر 10 سال، پھر 20 سال، 33 برس تک حضرت یونس علیہ السلام انہیں سچی راہ کی طرف بلاتے رہے اور 33 سال بعد صرف 2 لوگ ایمان لائے۔ صرف ایک عالم اور قاضی تھا اور دوسرا نہایت عابد گزار اور متواضع انسان۔ باقی سب نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس فال نکالنے والے اتنے عالم اور اتنے فنکار موجود ہیں اور تم اکیلے کھڑے ہو کر کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ تم ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہو، کیا تم ہمیں ایسی پابندیوں میں باندھنا چاہتے ہو جن پر آج تک کسی نے عمل نہیں کیا؟ وہ صرف اتنی باتوں پر ہی نہیں رکے بلکہ ہر ممکن طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آنے والے وقت سے خبردار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تباہی ہم پر نازل ہونے والی ہے، ایک عذاب آ رہا ہے اور سیاہ بادل جمع ہو رہے ہیں، اور واقعی آسمان پر نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ کالے بادل جیسے کسی غضبناک لشکر کی فوج ہو آہستہ آہستہ شہر کے اوپر جمع ہونے لگے۔ مگر نینوا کے لوگوں نے ان تنبیہوں کو نظر انداز کر دیا اور آسمان میں موجود نشانیوں کی پرواہ تک نہیں کی، الٹا وہ اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا کہ 40 دن اور صبر کرو، اگر وہ ان 40 دنوں کے اندر ایمان نہ لائے تو میں اپنا عذاب بھیج دوں گا۔ 40 دن زیادہ نہ تھے اور نہ کم۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو اس آخری موقع کے بارے میں بتایا، مگر پھر وہی خاموشی، پھر وہی بے پرواہی، پھر وہی انکار۔ دن گزرتے رہے اور بادل مزید گہرے ہوتے گئے۔ آنے والے عذاب کی بو جیسے ہوا میں محسوس ہونے لگی تھی۔ 20 دن گزرے، پھر 30۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دل دکھ رہا تھا۔ 33 سال، 33 سال پورے سال وہ انہیں بلاتے رہے۔ کتنی بار انہوں نے وہی الفاظ دہرائے تھے، کتنی بار وہی دلیلیں دیں، کتنی بار وہی تنبیہ کی۔ جب 33ویں دن کا سورج نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کی صبر کی حد پوری ہو چکی تھی۔ اللہ کے بتائے ہوئے وقت میں صرف 3 دن باقی تھے، مگر وہ مزید ٹھہر نہ سکے۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا، ان کی روح تھک چکی تھی۔ بہت تھوڑا وقت رہ گیا تھا، عذاب قریب ہے۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے دل میں کہا، یہاں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے۔ اسلام میں ہم یہ مانتے ہیں کہ انبیاء میں عصمت کی صفت ہوتی ہے، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اجتہاد میں چھوٹی سی بھول نہیں کر سکتے۔ وہ انسان ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے رائے میں چھوٹی سی غلطی ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں آج کی طرح باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھے۔ عذاب بہت قریب محسوس ہو رہا تھا، آسمان تاریک تھا۔ بہت سے اسلامی علماء لکھتے ہیں کہ نبی کو لگا کہ وہ اس جگہ مزید نہیں ٹھہر سکتے۔ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ عذاب ضرور آئے گا اور انہیں جانا چاہیے، ورنہ جو شخص 33 سال انتظار کر سکتا تھا وہ 3 دن اور بھی انتظار کر سکتا تھا۔ یوں اس رات وہ نینوا چھوڑ کر چلے گئے۔ تنہا اندھیرے میں وہ شہر سے دور جانے لگے۔ ان کا دل بھاری تھا، قدم سست تھے، مگر وہ یقین رکھتے تھے کہ عذاب آنے والا ہے اور وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو ایک جہاز روانگی کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ حضرت یونس اس پر سوار ہو گئے۔ کپتان نے انہیں پہچان لیا اور خوش آمدید کہا، حضرت یونس، آپ ایک نیک اور شریف آدمی ہیں، ہمارا جہاز آپ سے برکت محسوس کرتا ہے۔
जहाज चल पड़ा। शुरू में समंदर पुरसुकून था और हवा नरम थी, मगर अचानक मौसम बदल गया। हवा तेज हो गई और लहरें बुलंद होने लगी। जहाज उन दो हैकल लहरों के दरमियान एक खिलौने की तरह था। लहरें डेक पर टकराती और हवा ऐसी थी जैसे बादबान तोड़ देगी। मल्लाहों को जमाने का रवाज मालूम था। जब ऐसा तूफान आता था तो इसका मतलब होता था कि जहाज में कोई बदनसीब शख्स है और उसे समंदर में फेंकना जरूरी है ताकि बाकी लोग बच जाएं। उन्होंने कहा कि कुरा डालें, जिसका नाम निकलेगा हम उसे समंदर में डाल देंगे। कुरा डाला गया और नाम आया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। मल्ला हैरान रह गए। नहीं, हम यूनुस को जानते हैं, वो नेक और ईमानदार आदमी है, वो ये नहीं हो सकता। दोबारा कुरा डाला गया, दूसरी बार भी यूनुस। एक बार उन्होंने कहा शायद गलती हुई हो, तीसरी बार फिर यूनुस, आखिर चौथी बार भी वही नाम यूनुस। अब कोई रास्ता नहीं रहा था। मल्लाहों ने अफसुर्दगी से यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। अगरचे हम आपको जानते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर हम बाकी लोगों पर जुल्म नहीं कर सकते। हमें आपको समंदर में डालना होगा। यूनुस ने सर हिला दिया। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। वो अपनी तकदीर को कबूल कर चुके थे। फिर वो तारीक तूफानी समंदर की तरफ बढ़े। अंधेरी रात में तूफानी लहरों के बीच यूनुस पानी में गिर गए। लहरें उन्हें अपनी गहराइयों में ले गईं। उनके इर्द गिर्द हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा था। समंदर बेकाबू था। उनके जिंदा रहने का इम्कान सिफर था। ऐसी घड़ी में इंसान क्या सोचता है? क्या वो खौफ से चीखता है? क्या वो मदद मांगता है? क्या वो कहता है कि काश मैंने ये ना किया होता? मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में गुजरने वाला ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि वो नबी थे और नबियों में खास सिफ्त होती है, वो कभी दूसरों को इल्जाम नहीं देते। वो सबसे पहले अपनी ही रूह को देखते हैं। उसी लम्हे जब वो गहरे और तारीक पानी में डूब रहे थे, अल्लाह का मंसूबा जाहिर हुआ। समंदर की तह से एक बहुत बड़ी मछली उभरी। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें बहुत बड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मछली एक किस्म की अजीम और जसीम बहल थी। वो बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर और बहुत खौफनाक थी। मगर अल्लाह ने उस मछली के दिल में वही डाली कि वो यूनुस को निगल ले, और उसने यूनुस को निगल लिया। अब यूनुस के गिर्द तीन अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, न कोई उम्मीद, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। हजरत यूनुस ने यह नहीं कहा कि मुझे यहां से निकालो। उन्होंने गुस्से में यह नहीं कहा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब मेरी कौम की वजह से हुआ। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जहाज बहुत दूर जा चुका था। उनकी कौम नैनवा में थी। उस वक्त उनके पास अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, और उसी लम्हे खालिस तौहीद ने उनके दिल को भर दिया। तमाम असबाब खत्म हो गए। न बीवी उनके साथ थी, न खानदान, न कौम। दुनिया की कोई चीज उनकी मदद नहीं कर सकती थी। मछली के पेट के अंदर समंदर के दरमियान रात के अंधेरे में सिर्फ अल्लाह था। और फिर यूनुस की जबान से ये मुबारक कलिमात निकले, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तू हर कमी और हर कमजोरी से पाक है। बेशक मैं ही वो हूं जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। इस दुआ में उन्होंने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बचा ले। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मदद कर। उन्होंने सिर्फ दो बातें कही। पहली, अल्लाह की वहदानियत और कामिल सिफात, और दूसरी अपनी गलती का एतराफ। तू कामिल है और मैं ऐब वाला हूं। तू हर कमजोरी से पाक है और मैंने अपनी जान पर खुद ही जुल्म किया। उसी वक्त नैनवा के शहर में एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही थी। जब यूनुस शहर छोड़कर चले गए, स्याह बादल मजीद करीब आ गए। अजाब अब तकरीबन शहर को छू रहा था। लोग घबरा गए। यूनुस सच्चे थे। वो कहने लगे अजाब बाकी आ रहा है। वो दो मोमिनीन, वही दो जो यूनुस के पैगाम को कबूल कर चुके थे, लोगों की रहनुमाई करने लगे। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। आओ हम सब ये 6 चीजें अंजाम दें। पहला, पूरी कौम एक साथ ईमान ले आई। एक ही लम्हे में 1 लाख लोग तौहीद की तरफ पलट आए। अमीर, गरीब, ताजिर, गुलाम, सब ने इकट्ठे कलमा पढ़ा। दूसरा, उन्होंने एक दूसरे के हुकूक वापस करना शुरू किए। अगर उनके घरों में एक ईंट भी ऐसी थी जो किसी और की थी, वो उसे निकाल कर वापस कर देते थे। इंसाफ की मोहब्बत अपने उरूज पर थी। कोई किसी का मकरूज ना रहे। तीसरा, उन्होंने अपनी सारी दौलत सदका कर दी। जो कुछ उनके पास था सब अल्लाह की राह में दे दिया। यूं साबित किया कि अब वो दुनिया की दौलत से मोहब्बत नहीं रखते। चौथा, वो सब लोग मिलकर शहर से बाहर निकल आए। वो आने वाले अजाब के भारी माहौल से दूर जाना चाहते थे। शहर से बाहर खुले मैदान में वो आसमान की तरफ रुख करके खड़े हो गए। पांचवा, उन्होंने तौबा की और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। उन्होंने ये मशहूर दुआ पढ़ी, ए अल्लाह तूने मुझे बगैर किसी कीमत के पैदा किया। ए अल्लाह तूने मुझे बगैर किसी कीमत के रिस्क दिया। ए अल्लाह अब मुझे बगैर किसी कीमत के मुआफ फरमा। वो बार बार मकनान कहते रहे।
वो बार बार कहते रहे, यानी मुफ्त बगैर मुआवजे के। वो अल्लाह से पूरी उम्मीद और रहमत की तलब के साथ दुआ मांग रहे थे। और छठा, उसी वक्त यूनुस मछली के पेट में दुआ कर रहे थे। दोनों तरफ यूनुस अंधेरे में और नैनवा के लोग स्याह बादलों के नीचे एक ही लम्हे अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे थे। अल्लाह ने दोनों की दुआएं कबूल कर लीं। अल्लाह ने पहले नैनवा के लोगों को माफ किया, हत्ता कि यूनुस से भी पहले। उनकी तौबा सच्ची थी और उनका ईमान हकीकी था। स्याह बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे, अजाब उठा लिया गया। तारीख में वो वाहिद कौम जिस पर अल्लाह का अजाब आया और फिर वापस ले लिया गया नैनवा के लोग थे, क्योंकि अजाब के बाद दोबारा अपनी पुरानी राहों की तरफ नहीं लौटे थे। वो ईमान पर मजबूत रहे। मछली के पेट में यूनुस की दुआ जारी रही और उनकी दुआ भी कुछ वक्त बाद कबूल हुई, बिल्कुल उनकी कौम की तरह। तौहीद की रोशनी ने उस तारीक जगह को भर दिया। मछली अब खौफनाक महसूस नहीं होती थी, बल्कि यूं लगता था जैसे वो उन्हें हिफाजत के साथ ले जा रही हो। समंदर भी अब खतरनाक महसूस नहीं होता था। वो जैसे खिला पुरसुकून मैदान बन गया। रात का अंधेरा कम होने लगा, चांद उनके ऊपर चिराग की तरह चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात उनकी दोस्त बन गई हो। पहले हर चीज वहशी और खौफनाक लग रही थी, मछली, समंदर, अंधेरा। लेकिन जब वो समझ गए कि ये सब कुछ एक ही हुक्म के तहत चल रहा है, तो खौफ राहत में बदल गया। अल्लाह से कुर्बत का एहसास उनके दिल में भर गया, क्योंकि अब उन्हें यकीन था कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चलता है और हर चीज उसके हुक्म के मुताबिक हरकत करती है। अल्लाह ने उन्हें जंगली समंदर में लहरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने एक अजीम मछली को इस्तेमाल करके यूनुस की हिफाजत की। मछली के पेट के तेजाबी मादे ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मछली यकीनी तौर पर सांस लेती रही होगी और उसके जरिए यूनुस जिंदा रहे। उनका सांस बरकरार रहा। फिर मौजे का आखिरी हिस्सा हुआ। अल्लाह के हुक्म से मछली यूनुस को साहिल तक ले आई। सलामती का साहिल, अमन का साहिल। यूनुस रेत पर लेट गए, कमजोर, थके हुए, लेकिन दिल में गहरी सुकून के साथ। अल्लाह ने वहां उनके लिए एक पौधा उगाया, कद्दू का पौधा, जिसे शजरतुल यक़तैन कहते हैं। उसके बड़े बड़े पत्ते उन्हें साया देते, उसका फल उन्हें खुराक देता, उसकी ठंडक हवा उन्हें राहत देती। ये सब अल्लाह की रहमत थी। बाद में एक चरवाहा उस इलाके से गुजरा। जब उसने यूनुस को देखा तो हैरान हुआ। ये आदमी कहाँ से आया, उसने सोचा। वो करीब आया, उसने यूनुस की मदद की, उन्हें पानी और खाना दिया, उनकी देखभाल की, और यूनुस ने उस चरवाहे को कभी नहीं बुलाया। सालों बाद जब वो नैनवा वापस आए तो उन्होंने उस शख्स को पाया और उसे लोगों का सरदार बना दिया, क्योंकि उस चरवाहे ने उनकी सबसे सख्त घड़ी में उनकी मदद की थी। ये वफादारी थी, ये सच्चा अखलास था, और अब घर लौटने का वक्त था। यूनुस अपने लोगों के बारे में गहरी सोच में थे, लेकिन नैनवा वापस आने से पहले हमें कुरान की आयत और हदीस में मज़कूर अहम बातें बयान करनी चाहिए, क्योंकि ये किस्सा सिर्फ निजात का किस्सा नहीं, बल्कि तौबा, सब्र और अल्लाह की रहमत की मजबूत तरीन मिसालों में से एक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की बहुत सी आयत में यूनुस का वाक़या बयान फरमाता है। यूनुस यकीनन रसूलों में से था। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में चढ़ गया, फिर उन पर कुरा डाला गया, तो वो हारने वालों में शामिल हो गया। फिर एक मछली ने उसे निगल लिया, जबकि वो अपने आप को मलामत कर रहा था। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो लोगों के दोबारा उठाए जाने के दिन तक वो मछली के पेट में ही रहता। फिर हमने उसे खाली मैदान में फेंक दिया, जबकि वो बीमार था, और हमने उस पर कद्दू की बेल उगा दी, और हमने उसे 1 लाख या इससे भी ज्यादा लोगों की कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक दुनिया की जिंदगी से फायदा उठाने दिया। सूरह साफात। जुन्नून को याद करो जब वो गुस्से में चल दिया और समझा कि हम उस पर सख्ती नहीं करेंगे। फिर जब वो अंधेरों में पुकारने लगा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी। इसी तरह हम ईमान वालों को निजात देते हैं। सूरह अंबिया आयत 88। कोई भी बस्ती ऐसी नहीं थी जो ईमान लाई हो और उसका ईमान उसे फायदा भी देता हो, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे रुस्वा करने वाला अजाब हटा दिया और हमने उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक फायदा उठाने दिया। सूरह यूनुस आयत 88। और हमने इस्माइल, यसी, यूनुस और लूत को हिदायत दी और हमने उन सबको जहानों पर फजीलत दी। सूरह इनाम आयत 86। अपने रब के हुक्म पर सब्र करो और मछली वाले यूनुस की तरह ना हो, जब उसने गम की हालत में पुकारा। अगर उसके रब की नेमत उसे ना पहुंचती तो वो मलामत की हालत में एक बंजर जमीन पर फेंक दिया जाता, मगर उसके रब ने उसे चुन लिया और उसे सालेह लोगों में शामिल कर दिया।
سورہ قلم آیت 50۔ آیت 163، اور ہم نے آپ پر اسی طرح وحی نازل کی جس طرح نوح اور ان کے آنے کے بعد والے انبیاء پر نازل کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر بھی وحی نازل کی۔ سورہ نساء۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام 6 مقامات پر آیا ہے، 4 مرتبہ نام یونس کے ساتھ، 1 بار لقب ذوالنون کے ساتھ اور 1 بار لقب صاحب الحوت کے ساتھ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں بہت سی اہم باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تواضع والی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونس علیہ السلام کے لیے عظیم احترام اور ان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ 2، یونس کی دعا کی قوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ بہت خاص دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلمان بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ترمذی، احمد بن حنبل، مسند۔ 3، مصیبت سے نجات کی دعا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا ایک نام ایسا ہے جب کوئی اسے پکار کر دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، اور جب مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ یہ نام یونس بن متی کی دعا میں ہے۔ سعد نے پوچھا، کیا یہ صرف یونس کے لیے ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ یونس کے لیے بھی ہے اور ہر اس مومن کے لیے بھی جو اس کے ذریعے دعا کرے۔ اسلامی روایت سے دلچسپ تفصیلات صحیح حدیث سے ثابت نہیں مگر تفاسیر اور تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں۔ ان کا مقصد کہانی کو مزید خوبصورتی اور سبق دینا ہے۔ 1، 3 اندھیرے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یونس 3 اندھیروں میں تھے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ انہی اندھیروں میں ان کی دعا آسمانوں تک پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب، یہ مانوس آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی دعا ہے۔ 2، وہ مچھلی میں کتنے دن رہے؟ مختلف روایت میں مختلف اقوال ملتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں، کچھ کے مطابق 7 دن، بعض کہتے ہیں یہ مدت 40 دن تھی۔ اصل مدت معلوم نہیں، لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وقت گہری سوچ، غور و فکر اور ایک عظیم آزمائش کا زمانہ تھا۔ 3، مچھلی کی فطرت اور اللہ کی حفاظت۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پیغام بھیجا، ہم نے یونس کو تمہاری غذا نہیں بنایا، ہم نے تمہیں انہیں محفوظ رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے مچھلی کے معدے کے تیزاب نے یونس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کی جلد اور جسم محفوظ رہے۔ مچھلی مسلسل سانس لیتی رہی، اس لیے اندر آکسیجن موجود تھی۔ اللہ نے انہیں مکمل اندھیروں میں بھی محفوظ رکھا۔ 4، سمندر کی گہرائیوں میں تسبیح۔ بعض روایات اور تفاسیر میں ہے کہ جب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ گہرے سمندر میں مچھلی کی تسبیح، سمندری مخلوقات کی آوازیں، چٹانوں اور حتیٰ کہ ریت تک کی تسبیح سنتے تھے۔ ان سے ان کے دل میں توحید کی آگاہی اور بڑھ گئی اور اللہ کی عظمت کا شعور اور گہرا ہو گیا۔ 5، کدو کے پودے کی حکمت۔ کدو کا پودا یقطین بہت سے فوائد کا حامل تھا۔ اس کے بڑے پتے سورج سے حفاظت کرتے تھے، اس کا پھل انہیں غذا دیتا تھا، یہ بہت تیزی سے بڑھتا تھا اور یہ کیڑے مکوڑوں کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ یونس کے کمزور اور حساس جسم کے لیے بہترین پودا تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کے پاس ایک جنگلی پہاڑی بکری بھیجی جو ہر صبح و شام انہیں دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گئے۔ 6، قوم کی سچی توبہ۔ یونس کے جانے کے بعد نینوا کے لوگوں نے آسمان پر عذاب کے بادل دیکھ لیے، انہوں نے فوراً سچی توبہ کی، انہوں نے بچوں کو ماؤں سے الگ کیا اور پہاڑوں پر چڑھ گئے، روتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے جانوروں کو بھی ان کے بچوں سے جدا کر دیا، سب مخلوق روئی۔ انہوں نے موٹے بالوں کے سخت کپڑے پہنے ہوئے تھے تاکہ اپنے آپ کو سزا دیں اور ندامت ظاہر کریں۔ وہ سب مل کر روئے، دعا کی اور ایک دوسرے کے تمام ظلم اور نقصان کو درست کر دیا۔ اگر ان کے گھروں میں ایک پتھر بھی ایسا تھا جو کسی اور کا تھا، وہ اسے باہر نکال کر اصل مالک کو واپس کر دیتے تھے۔ یہ سچی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ بعض روایت کہتی ہیں کہ عذاب عاشورہ کے دن ٹال دیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بدھ کے دن 15 شوال کو پیش آیا۔ 7، نینوا کے بادشاہ کے ساتھ تعلق۔ اس وقت نینوا ایک کافر سلطنت تھی اور اس کا بادشاہ داراکن کہلاتا تھا۔ جب یونس نینوا پہنچے تو وہ بادشاہ دارا کے دربار میں گئے۔ انہوں نے نہایت ادب مگر مضبوط آواز میں کہا، اے عظیم بادشاہ، میری باتوں سے ناراض نہ ہو، میں یہاں سچ بتانے آیا ہوں۔
सच ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसका चुना हुआ नबी हूँ और आपसे और आपकी कौम से सच्चे दिल से गुजारिश करता हूँ कि बुतों की इबादत छोड़ दें और एक सच्चे खालिक की तरफ पलट आए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत और सुकून पाएंगे। नैनवा के कुछ लोगों के दिलों में थोड़ा सा शक पैदा हुआ। उन्होंने सोचा शायद ये नबी सच कह रहा है, लेकिन आबा व अजदाद के दीन और रिवायत को छोड़ना उन्हें मुश्किल लग रहा था। शुरू में बादशाह ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने अजाब को आते देखा तो वो भी अपनी कौम की तरह ईमान ले आया। बाज इस्लामी रिवायत कहती हैं कि बादशाह ने बाद में यूनुस की हिमायत भी की। बाज रिवायत यहाँ तक कहती हैं कि जब अजाब के बादल नजर आए तो सबसे पहले बादशाह ने तौबा की और पूरी कौम को तौबा की दावत दी। 8. यूनुस की नस्बी शनाख्त। यूनुस बनी इसराइल के अंबिया में से थे। उनका नस्ब याकूब के बेटे बिन्यामीन तक जाता है और बिन्यामीन यूसुफ के हकीकी भाई थे। जिस तरह कुरान और हदीस में ईसा को उनकी वालदा के नाम से जिक्र किया जाता है, इसी तरह यूनुस को भी यूनुस बिन मती कहा जाता है। बाज कहते हैं कि मती उनकी वालदा थी, मगर ज्यादातर उलमा के नजदीक मती उनके वालिद थे। कहा जाता है कि यूनुस 30 साल की उम्र में नबी बने और कई साल तक अपनी कौम को ईमान की दावत देते रहे। नैनवा उस वक्त मेसोपोटामिया के इलाके का मशहूर शहर था। आज के इराक में यह आशूरी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। जुनूबी मेसोपोटामिया में वाक़े नैनवा उस जमाने के अमीर तरीन और मशहूर तरीन शहरों में से था। दूर से एक जदीद शहर की तरह नजर आता था। सफेद पत्थरों की ऊंची इमारतें, वसी रास्ते, सड़कों के दोनों तरफ बागात। 9. उस चरवाहे को इनाम देना जिसने उनकी मदद की। जब यूनुस मछली के पेट से निकलकर साहिल पर पहुंचे तो एक चरवाहे ने उनकी मदद की। उस चरवाहे ने उन्हें पानी दिया, खाना दिया और उनकी देखभाल की। यूनुस ने कभी उस एहसान को नहीं भुलाया। सालों बाद जब वो नैनवा वापस आए तो उन्होंने उसी चरवाहे को तलाश किया और उसे एक आली मनसब दिया। बाज रिवायत में है कि उसे कौम का सरदार बनाया गया और वो 40 बरस तक अल्लाह के साथ रहनुमाई करता रहा। यह वफादारी और शुक्रगुजारी की कदर को जाहिर करता है। यूनुस नाम का मतलब। यूनुस अरबी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब बड़ी समंदरी मखलूक या मछली भी हो सकता है। इसी नाम से एक अजीम नबी का जिक्र भी है। यूनुस नाम रूहानी अक़दार, हिकमत, सब्र, अल्लाह पर तवक्कल और बुलंद अखलाक की अलामत है। यूनुस नाम रखने वाले लोग अक्सर नर्म मिजाज, साबिर, मेहरबान, समझदार, मददगार और सच्चे माने जाते हैं। इस वजह से वो अपनी बिरादरी में कद्र व एहतराम पाते हैं। इनमें से कई तफसीलात तफसीरी किताबों में मिलती हैं। कुछ रिवायात ज़ईफ हैं, मगर क्योंकि वो कुरान के असल वाक़े से मुतसादिम नहीं, इसलिए उन्हें बतौर इजाफी मालूमात जिक्र किया जाता है। जब यूनुस की कुव्वत बहाल हुई तो वो नैनवा की तरफ रवाना हुए। शहर के करीब पहुंचकर उन्हें एक शख्स मिला। उन्होंने उससे कौम के हालात पूछे। उन्होंने बताया कि लोग ईमान ले आए हैं, तौबा कर चुके हैं, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है। उसने ये भी बताया कि सब लोग यूनुस का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उन्हें फिर रहनुमाई दें। जब लोगों ने सुना कि यूनुस वापस आ गए हैं तो फौरन वो उनकी तरफ दौड़े। उस वक्त यूनुस नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पूरी करने के बाद लोगों ने उन्हें मोहब्बत से गले लगाया और माफी मांगी। यूनुस ने उन्हें माफ किया, मोहब्बत से जवाब दिया। उन्होंने उन्हें अल्लाह के अहकाम सिखाए। उस दिन से उनकी कौम ईमान, नेकी और इताअत की बुनियाद पर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। कुरान भी यही कहता है। आखिरकार वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक मुद्दत तक जिंदगी का लुत्फ लेने दिया। आखिर में सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ रहमत के दरवाजे खोलती है, गुनाहों के पहाड़ पिघला देती है, दिल को सुकून देती है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करती है। आज कौन है जिसके मसाइल ना हो? हर घर में दर्द है, हर दिल जख्मी है, हर शख्स कुछ ना कुछ खो चुका है। लेकिन हजरत यूनुस की कहानी हमें आहिस्ता से कहती है कि अल्लाह की तरफ लौटो, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हम इस वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट्स और शेयर करके हमारा साथ दें। हमारे पास 265 से ज्यादा इस्लामी वीडियोस मौजूद हैं। आप अपनी फैमिली के साथ किसी भी वक्त देख सकते हैं। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। आमीन।